हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसकी ओलैप की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने जो आपका एक्सपेरिमेंट है फ्रिक्शन, इसे स्टार्ट किया था, जिसमें इसकी हमने थ्योरी डिस्कस की थी। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ प्रोसीजर भी हमने जाना था। आज हम वीडियो, आपके एनिमेटेड वीडियो और जो नॉर्मल वीडियो है उसके माध्यम से ये देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करना है, साथ ही साथ सिमुलेटर के माध्यम से हम इसे परफॉर्म करें। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, पहले हम एनिमेशन में गए। एनिमेशन में जाकर हमारे पास जो है एक वीडियो आ गई है यहाँ पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस जो वीडियो है ये एनिमेटेड वीडियो है और इसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि किस तरीके से आपको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। Friction. Aim. To study the relationship between force of limiting friction and normal reaction and to find the coefficient of friction between a block and a horizontal surface. Materials required: wooden block, thread, slotted weight, weight hanger. Take a wooden block with a hook on one end and place it on the table. Take a piece of thread with a hook and tie the wooden block to it. Pass it over the pulley. Hang a 100 grams weight hanger on the free end of the thread and keep it vertical. Add 5 more 100 grams slotted weight to the weight hanger. Note down the observations in the observation column. Coefficient of friction, mu, is equal to F divided by R, which is equal to 500 divided by 1000. That is equal to 0.5. Result: the coefficient of friction between wood and wood is equal to 0.5. अब हम जो है वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे कि आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो वीडियो होगी वो वास्तविक लैब यानी रियल लैब की वीडियो है। इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से आपको इसे परफॉर्म करना है। Friction. Friction is a force which opposes the motion of a body when it is in relative motion. It plays an important part in our daily life. We cannot walk on a frictionless surface. Brakes will not work if there is no friction. Holding things, writing, grinding, igniting a matchstick, all these are possible only in the presence of friction. Here, we're studying the relationship between force of limiting friction and normal reaction and finding the coefficient of friction between a block and a horizontal surface by plotting a graph. Principle: the limiting friction is the least force required to move the body from rest. If F be the limiting friction and R be the normal reaction, then F is directly proportional to R. Therefore, F is equal to mu R, where mu is called the coefficient of friction, which is a measure of friction based on the types of material that are in contact. Materials required: wooden block with a hook on one side, 50 or 20 grams slotted weights, horizontal plane fitted with a frictionless pulley at one end, string balance, thread. Procedure: determine the mass of the wooden block M using a string balance and keep it on the tabletop. Tie one end of a thread with the hook of the wooden block and pass it over the pulley. Tie the other end of the thread to the weight hanger and hang it vertically. Increase the weights in the weight hanger till the block just starts sliding.
Note down the total mass added to the weight hanger and multiplied by acceleration due to gravity G, which gives a force of limiting friction F. The normal reaction R is given by the mass m of the wooden block multiplied by acceleration due to gravity G. The coefficient of the static friction is then calculated by the equation mu is equal to F divided by R. Repeat the experiment with different masses on the block, and in each case, mu is calculated and it is found to be a constant for the given pair of surfaces. A graph is drawn with normal reaction R along x-axis and limiting friction F along y-axis. The graph is a straight line. The coefficient of friction is also calculated by measuring the slope of the graph. Mu is equal to AB by OA. Applications. While walking, friction gives the required reaction so that we can move forward or backward. Packing, tying, bandaging is possible only due to friction. It is also the friction between the tires and the road that allows the car to stop while applying the brakes. आई होप आपको ये यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सिमुलेटर की ओर। तो जैसे ही आप सिमुलेटर में जाएंगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे आपका ब्लॉक मटेरियल की बात की गई, यानी आपको कैसा ब्लॉक चाहिए वो लिखा, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस के मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। सरफेस का मटेरियल यहाँ पे इस तरीके से चेंज हो जाएगा। कि आप वुड में जाएंगे तो वुड के भी आपको यहाँ स्टील का, ब्रिक का, कैसा आपको चाहिए आपका जो है सरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक के वेट को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कम या ज्यादा कर सकते हैं। हैंगिंग वेट को भी आप बढ़ा या घटा सकते हैं। जिस हिसाब से आप करेंगे उस हिसाब से आपका यहाँ ग्राफ बनता रहेगा। ठीक है, तो आप रीसेट करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ से सबसे पहले वुड ही ले लेते हैं। सरफेस भी आप वुड ले लेंगे। ब्लॉक का वेट जो है उसे बढ़ा देते हैं। पहले हम 100 पे ही 1000 पे ही करते हैं, 1500 कर लेते हैं। ठीक है, हैंगिंग का वेट हम कर देते हैं 500। आप और बढ़ा सकते हैं, आप बढ़ाते रहेंगे वेट। और आप देखिए जैसे ही आपका वेट बढ़ा, आपका यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर आपका जो है एक ग्राफ आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन जो है, बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे वेट जो है या फोर्स जो है वो कितना है आपका 800 ग्राम। ब्लॉक का वेट कितना है 500। ठीक है, तो आप दोनों को डिवाइड करेंगे, आपका जो आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे आपकी म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे शो रिजल्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपकी सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन आप देख सकते हैं कितना आया है, नॉर्मल रिएक्शन आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ आपका जो यहाँ पे म्यू की वैल्यू भी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 800 का हमने लिया था ये, तो उसमें आपका जी को आपका जो है हटा दिया गया है, तो तब आपका 750 ग्राम आ गया है। नॉर्मल रिएक्शन जो है इसका वेट है, और आपका कोफिशिएंट आ गया है 0.5। अब आपको नोट करके रखना है कि कोफिशिएंट या म्यू की वैल्यू 0.5 आई। हम क्या करेंगे, अब फिर हम अपना वेट वगैरह चेंज करते हैं। ठीक है, रीसेट करके सब्सटेंस आप वही रखेंगे, वुड ही रखते हैं, सरफेस भी हम वुड ही रखेंगे। अब वेट का भार हम जो है 2000 कर देते हैं। हैंगिंग वेट को हम जो है 1000 ग्राम कर देते हैं। शो रिजल्ट करेंगे, नीचे आएंगे आप, तो आप देख सकते हैं म्यू की वैल्यू सेम ही है जैसे कि हमारी पहले आई। ठीक है, फिर आप कर सकते हैं दोबारा से इसी में आप चेंजेस कर लीजिए। हम यहाँ पे 3000 ले लेते हैं ब्लॉक। वेट हम बढ़ाते हैं, बढ़ाएंगे वेट। ठीक है, अब देखिए आप 1500 में आपका जो है यहाँ पे ग्राफ बन गया है। शो रिजल्ट में जाएंगे तो आपका म्यू की वैल्यू सेम आ गई है। तो इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। अभी हमने वुड के साथ किया, नेक्स्ट हम दूसरा मटेरियल ले लेते हैं। वुड ही रहने देते हैं, सरफेस चेंज कर लेते हैं, स्टील कर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ब्लॉक के वेट को बढ़ा जो है यहाँ पे 1000 रखते हैं। हैंगिंग वेट को हम कर देंगे 600। अब आप देखिए ग्राफ बना आपका। शो रिजल्ट में जाएंगे, शो रिजल्ट में जाएंगे, इसे नीचे करेंगे, आपका फ्रिक्शन आ गया 0.6। म्यू की वैल्यू 0.6। रीसेट करेंगे,
इसको फिर से स्टील ले लेते हैं, ब्लॉक की वैल्यू बढ़ा देते हैं, 2500 कर लेते हैं, हैंगिंग वेट का बढ़ाते हैं, 1500 ग्राम कर दिया। अब आप देखिए जो रिजल्ट में जाएंगे तो आपका रिजल्ट यहाँ पे आ गया 0.6। इसी तरीके से आप वेट को और बढ़ा सकते हैं। इसी केस में स्टील कर लेते हैं, वेट हम बढ़ा देते 3000, हैंगिंग वेट को और बढ़ाएंगे, ठीक है, हैंगिंग वेट को बढ़ा देते हैं, शो रिजल्ट में आएंगे, शो रिजल्ट का 0.6 आ गया है। तो आप देख सकते हैं हर एक केस में आपका म्यू का वैल्यू सेम आया है। इसके लिए जब आपका जो मटेरियल है सरफेस का जो मटेरियल है, पदार्थ है, और जो आपका वेट है उसका जो पदार्थ है, वो जब आपके दोनों जो है आपने कांस्टेंट रखे हैं तो सबके लिए फ्रिक्शन सेम आया है, ठीक है। इसी तरीके से हम फिर से अब हम क्या करेंगे, वुड ही रखते हैं, ब्रिक के ले लेते हैं, वेट बढ़ाएंगे, 3000 कर लेते हैं, हैंगिंग वेट को बढ़ाते हैं, ग्राफ बनेगा हैंगिंग वेट से। अब यहाँ पे शो रिजल्ट में जाएंगे, शो रिजल्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपका फ्रिक्शन कितना आया है 0.6। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपने ब्रिक कर दिया है तो आपका क्या है, म्यू 0.6 आया है। रीसेट करेंगे, फिर से ब्रिक पे जाएंगे, अब हम यहाँ पे 220 कर देते हैं, इसको बढ़ाते हैं, 1400 में आपका ग्राफ बन रहा है। शो रिजल्ट में जाएंगे तो शो रिजल्ट में आपका जो है 0.6 आ, ठीक है। इस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे। अब हम क्या करते हैं, ब्लॉक को चेंज कर देते हैं, ब्लॉक अब स्टील कर लेंगे, ठीक है, सरफेस का मटेरियल भी हम स्टील ही ले लेते हैं, ब्लॉक का वेट 3000 कर देते हैं, हैंगिंग वेट को हम कर देते हैं 2400। शो रिजल्ट में जाएंगे और आपका क्या आ गया, म्यू की वैल्यू 0.74। फिर से सरफेस को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, सरफेस को कांस्टेंट रखेंगे, दोनों हम स्टील ही ले लेते हैं, ठीक है, वेट को हम कर देंगे हाफ या 2000 कर लेते हैं, हैंगिंग वेट को बढ़ाते हैं, 1500 हो गया है। शो रिजल्ट में जाएंगे, 0.74 आपका आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप इसे और सब्सटेंस के साथ भी परफॉर्म करेंगे। स्टील के साथ हम ले लेते हैं आयरन, कास्ट आयरन, 3000 कर दीजिए, हैंगिंग वेट को बढ़ाइए 1200 में। शो रिजल्ट में जाएंगे, 0.4 कोफिशिएंट आया है, रीसेट करेंगे, फिर से स्टील, कास्ट आयरन, ब्लॉक के वेट को हम कर देंगे 2000, हैंगिंग वेट को बढ़ाएंगे 800 ग्राम। शो रिजल्ट में जाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 0.4। तो आप देख सकते हैं म्यू की वैल्यू सेम आई। इसी तरीके से आपको इसे परफॉर्म करते रहना है अलग अलग सब्सटेंस के साथ। रीसेट करते हैं, ब्लॉक का मटेरियल स्टील, सरफेस मटेरियल ब्रास, वेट को बढ़ाएंगे तो 3000 कर लेते हैं, हैंगिंग वेट को बढ़ाते हैं 1100 हो गया है। शो रिजल्ट में जाएंगे और शो रिजल्ट में हमारा जो म्यू आएगा कोफिशिएंट वो 0.35 है, ठीक है। फिर से रीसेट करेंगे, ग्लास लेंगे हम ब्लॉक मटेरियल, यहाँ पे भी हम ग्लास ले लेते हैं, वेट 3000 कर देते हैं, हैंगिंग वेट बढ़ाते हैं, ठीक है। शो रिजल्ट में जाएंगे, आपका आएगा 0.94। तो अब देख सकते हैं वेट को कितना बढ़ाने पर इसके कोफिशिएंट में क्या फर्क आ रहा है। और हर एक मटेरियल के लिए, यानी अगर आपने मटेरियल को कांस्टेंट लिया है तो फिर आपका जो है म्यू की जो वैल्यू है वो आपकी सेम ही आएगी सब केसेस में, ठीक है। रीसेट कर देंगे, ग्लास ले लेते हैं, सरफेस मटेरियल हम स्टील ले लेते हैं, ब्लॉक का वेट बढ़ा देते हैं, हैंगिंग वेट को बढ़ाते हैं, शो रिजल्ट में जाएंगे, हैंगिंग वेट जैसे आप बढ़ाएंगे तो वो अपने आप ही सेट हो जाएगा जहां पे वो मूव करने लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोफिशिएंट आया है 0.7, ठीक है। फिर रीसेट करेंगे, ग्लास, सरफेस मटेरियल हम ले लेते हैं स्टील, ब्लॉक का वेट 3000, हैंगिंग वेट बढ़ाते हैं 2100।
शो रिजल्ट करो। कोफिशिएंट आया 0.7। निकल ले लेते हैं सरफेस मटेरियल, फिर आप ब्लॉक का वेट सेट करेंगे। 3000 कर दिया है हमने। हैंगिंग वेट को बढ़ाया, जिस वेट में वो मूव करेगा वो अपने आप आपका वहां पे, आप मूव करेंगे तो वो अपने आप वहां पे रुक जाए। तो यहाँ पे शो रिजल्ट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे म्यू की वैल्यू आई है 0.78। फिर से हम ग्लास और निकल का ही कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। ग्लास निकल, वेट हम कम कर रखते हैं, 1700 ले लेते हैं। हैंगिंग वेट बढ़ाएंगे तो 1500 में आप देख सकते हैं ये लटकने लग गया है। शो रिजल्ट में जाएंगे तो रिजल्ट कितना है 0.7। तो इस तरीके से आपको जो है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है अलग अलग मटेरियल कॉम्बिनेशन के साथ। आप देख सकते हैं आपका ग्राफ भी यहाँ पे बन जाएगा। और जैसे ही आप जो है अपना वेट सेट करेंगे, ठीक, ऑब्जेक्ट का वेट सेट करेंगे और फिर आप जो है फोर्स पे जाएंगे, या जो आपका नीचे जो वेट है हैंगिंग वेट उस पे जाएंगे तो आप जहां तक उसका वैल्यू होगा वहां तक वो जाएगा, जब जिसमें वो मिनिमम वैल्यू होगा जहाँ पे वो मूव कर सकता है, और अपने आप इस तरीके से वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये सारे के सारे मटेरियल्स के साथ हमने म्यू की वैल्यू निकाल दी है। इस तरीके से आपको इसे परफॉर्म करना है। अब हम चलते वाइवा की तरफ। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ रीजन फॉर फ्रिक्शन, यानी आपसे ये पूछने से कौन सा रीजन होगा, यानी क्या चीज है जिसके कारण फ्रिक्शन होती है। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी विद्युत चुंबकीय बल। एडहेसिव फोर्स बिटवीन द सरफेस, यानी जो सरफेस है सतह है उनके बीच में जो एडहेसिव फोर्स होता है वो। बोथ 1 and 2, यानी 1 और 2 दोनों। इंटरलॉकिंग ऑफ प्रोजेक्शन एंड कंप्रेशन ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है कि जो इंटरलॉकिंग होती है कंप्रेशन और प्रोजेक्शन में सतह के, उनके कारण। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि फ्रिक्शन का रीजन क्या है। तो फ्रिक्शन यानी घर्षण का जो रीजन होता है वो कब क्या होता है। घर्षण के बारे में आप ये जानते हैं कि जब भी दो वस्तुएं आपस में रिलेटिव मोशन में होती हैं, ठीक है, और एक दूसरे के टच में होती हैं और रिलेटिव मोशन में भी होती हैं, तो क्या होता है उनके बीच में एक फोर्स लगता है जो कि मोशन की या गति की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। इसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन यानी घर्षण जो है सतह की एक क्वालिटी है, सतह के कारण ऐसा होता है। अब आपने जो है छोटी क्लासेस में ये भी पढ़ा है कि जो हमारी सतह होती है वो एक जैसी या समतल नहीं होती, उनमें कुछ ना कुछ जो है अनियमितताएं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम टेबल की बात करें, टेबल की सतह के बारे में आप क्या कहेंगे कि जो टेबल है वो कैसी है, उसकी सतह बिल्कुल सीधी है, ये सपाट है या बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन उसमें भी छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, छोटी छोटी अनियमितताएं होती हैं। ये अनियमितताएं इसमें होती हैं। प्लस अगर आप वहां पे मान लीजिए कोई बुक ले रहे हैं और बुक को उसके आगे मूव करा रहे हैं, तो जो बुक की सतह है वो भी आपको समतल दिखेगी, लेकिन उसमें भी कुछ छोटी छोटी अनियमितताएं होंगी। अब जब आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फिर आप किताब को मूव कराएंगे तो क्या होता है, इससे क्या होता है, जो ये प्रोजेक्शंस हैं या जो आपकी अनियमितताएं हैं ये आपस में जो है इंटरलॉकिंग बना देती है, ठीक है। इंटरलॉकिंग बना देती है। इंटरलॉकिंग के कारण क्या होता है, आपका फ्रिक्शन लगता है। जितनी ज्यादा सरफेस जो है रफ होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जितनी कम सरफेस रफ होगी या स्मूथ ज्यादा होगी उतनी कम आपका फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक रीजन है फ्रिक्शन का। तो इसका जो रीजन है वो है इंटरलॉकिंग ऑफ प्रोजेक्शन, यानी आपका आंसर होगा फोर्थ, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, आप इसे नोट कर लेंगे, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ फोर्स, यानी जो घर्षण बल होता है वो किस प्रकार के बल का उदाहरण होता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कॉन्टेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल, नन ऑफ दीज यानी निम्न में से कोई नहीं, कैन बी कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट, यानी कॉन्टेक्ट भी हो सकते हैं नॉन कॉन्टेक्ट भी हो सकते हैं, यानी संपर्क और असंपर्क दोनों हो सकता है। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स असंपर्क बल, ठीक है। अब फ्रिक्शन के बारे में कहा गया है, तो फ्रिक्शन क्या है, एक ऐसा बल है जो कि तब उत्पन्न होता है जब दो
वस्तुएं आपस में रिलेटिव मोशन में होती है, साथ ही साथ दोनों कांटेक्ट में होती है यानी संपर्क में होती है। यानी अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो ये संपर्क के कारण ही होती है। क्या होता है, आपकी जो दोनों सतह है उनके बीच में उनमें क्या होती है, उनकी सतह पर अनियमितताएं होती हैं। ये अनियमितताओं के कारण क्या होता है, जब हम दूसरी वस्तु को उसकी सतह के ऊपर रखते हैं तो वो इंटरलॉकिंग बना देती है, यानी दोनों सतह आपस में इंटरलॉकिंग बना देती है। और इस इंटरलॉकिंग के कारण क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो यहाँ पे अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल की बात करें तो घर्षण बल किस तरीके का फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कांटेक्ट, क्योंकि जब भी आपकी दो वस्तुएं उनकी जो सतह होती है वो आपस में कांटेक्ट में या संपर्क में होती है, उस समय ही यह बल लगता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कांटेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द रीजन फॉर स्लिपिंग व्हाइल वॉकिंग ऑन आइस, यानी जब हम आइस पे या बर्फ पे चलते हैं तो हम फिसलते क्यों हैं, फिसलने का रीजन बताना है, क्यों फिसलते हैं। पहला है देयर इज अ लार्ज नॉर्मल रिएक्शन, यानी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगला है आपका देयर इज लिटिल फ्रिक्शन ऑन आइस, यानी आइस में फ्रिक्शन बहुत कम होता है। अगला है देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन ऑन आइस, यानी आइस में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन या घर्षण होता है। अब यहाँ पे बात की गई है आइस की। अगर आइस की बात करें, आइस क्या होता है, आइस जो है पानी का एक सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म होता है। और अगर हम आइस की सतह की बात करें, बर्फ की सतह की बात करें, तो बर्फ की जो सतह होती है वो स्मूथ होती है यानी चिकनी होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें अनियमितताएं बहुत ही कम होती है। अब जब भी हम इसमें चलते हैं, आपकी जो आइस है, जो बर्फ है, उसमें अनियमितताएं बेहद कम है। ठीक है, तो क्या होता है, आपके जो पैर है या जो आपने जो पैर जो है वो उसके साथ जो है ग्रिपिंग अच्छी नहीं बना पाते, या यहाँ पे इंटरलॉकिंग ढंग से नहीं हो पाती, क्योंकि आपकी आइस जो है, जो बर्फ है, वो कैसी है, जो है चिकनी है, बिल्कुल स्मूथ है। इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन की कमी हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन कब बनता है, जब दोनों सतहों के बीच में जो है इंटरलॉकिंग होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही कम इंटरलॉकिंग होती है, तो इसी कारण हम जो है यहाँ पे फिसल जाते हैं। इसलिए आपका आंसर होगा देयर इज अ लिटिल फ्रिक्शन ऑन आइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर 3 होगा, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, यानी घर्षण बल की दिशा क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सेम एज द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो वस्तु की मूवमेंट की दिशा है वही इसकी दिशा होती है। नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जिस दिशा में वस्तु मूव कर रही है, गति कर रही है, उसकी दिशा के लंबवत होती है। डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, यानी जो प्लेन है और जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन प्लेन का और हॉरिजॉन्टल जो है उनके बीच का जो है एंगल ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जिस दिशा में वस्तु मूव कर रही है उसके दिशा के ऑपोजिट होती है। तो ये चार जो है आपको यहाँ की बात करें तो घर्षण बल कब लगता है, जब दो वस्तुएं आपस में मूव कर रही होती, गतिमान होती, दोनों की सतह कांटेक्ट में होती है। और अगर हम घर्षण बल की बात करें तो घर्षण बल हमेशा वस्तुओं की गति के विपरीत दिशा में लगता है, यानी यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की दिशा जिस तरफ होगी उसके विपरीत दिशा में आपका घर्षण बल लगेगा। तो आपका आंसर होगा 4th, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अगला आपका प्रश्न है विच बेस्ट डिस्क्राइब्स फ्रिक्शन, यानी कौन सा इनमें से फ्रिक्शन को, घर्षण को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। स्केलर क्वांटिटी, यानी ये एक स्केलर या अदिश राशि है। कैन बी स्केलर और वेक्टर, ये स्केलर या वेक्टर हो सकती है। नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला है आपका वेक्टर क्वांटिटी, यानी ये क्या है, सदिश राशि। घर्षण स्केलर क्वांटिटी है या स्केलर वेक्टर है या वेक्टर। अब घर्षण की बात करें तो घर्षण के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, दिशा भी होती है। दिशा कहाँ होती है, वस्तु की गति के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है।
अगला प्रश्न है व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी, यानी जब भी कोई वस्तु या कोई बॉडी जो है दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है, मूव करती है, ठीक है, जब भी कोई बॉडी कोई वस्तु दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन होता है, ठीक है। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण, यानी रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग यानी लोटनिक घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन या सर्पी घर्षण। तो यहाँ पे बात हो रही है बॉडी के रोल करने की, रोल कर रहा है, बॉडी रोल कर रहा है तो जो आपका फ्रिक्शन होगा वो भी रोलिंग फ्रिक्शन होगा, यानी आपका आंसर होगा सेकंड यानी रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी निम्न में से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। द रिलेशन बिटवीन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन कैन बी वेरी विद एनवायरमेंट, यानी अगर हम बात करें सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण की तो दोनों के बीच में जो संबंध है वो वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है, वातावरण के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से अधिक होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग यानी सर्पी घर्षण जो है रोलिंग फ्रिक्शन यानी रोटनिक घर्षण से अधिक होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। हमने तीन प्रकार के घर्षण पढ़े हैं, ठीक है, तीन प्रकार के घर्षण आपने पढ़े हैं, एक है आपका स्थैतिक घर्षण, एक है लोटनिक घर्षण और एक है सर्पी घर्षण। हमें क्या पता है कि अगर आपने कोई बॉडी जो है कहीं पे रखी गई है और आप उस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, वो मूव नहीं कर रही है, गति नहीं कर रही है, तो वो क्या होता है आपका, वहां पे जो घर्षण लग रहा है वो आपका स्थैतिक घर्षण होता है। सर्पी घर्षण कब लगता है, जब भी आपकी बॉडी स्लाइड करती है यानी गति करती है, ठीक है, तो वहां पे आपका सर्पी घर्षण लगता है। रोलिंग फ्रिक्शन या लौटनिक घर्षण कब लगता है, जब आपकी जो वस्तु है वो रोल कर रही होती है या लोट जो है गोल गोल घूम रही होती है। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखा है कि अगर आपके पास कोई वस्तु है उसको आप धक्का देकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, मान लीजिए एक अलमारी है उसे धक्का दे रहे हो, तो आपको धक्का देने में ज्यादा बल लगाना पड़ता है। वहीं अगर उस अलमारी के नीचे पहिए लगे हों तो वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सर्पी घर्षण होता है वो अधिक होता है, अधिक होता है इसीलिए आपको ज्यादा बल लगाना पड़ता है वस्तुओं को गतिमान करने के लिए या मूव कराने के लिए। वहीं अगर हम रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है तब लगता है, कब लगता है, जब आपकी जो वस्तु है उसके नीचे टायर या पहिए लगे हैं, तो क्या होता है पहिए गोल गोल घूमते हैं और ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। यानी जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है या लोटनिक घर्षण होता है ये आपका कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, यानी जो सर्पी घर्षण है वो लोटनिक घर्षण से अधिक होता है, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका एक्सपेरिमेंट है फ्रिक्शन इसे कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। हमने वीडियो के माध्यम से भी इसे समझा, साथ ही साथ हमने इसके कुछ वाइवा के क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है, जितना आज आपको पढ़ाया गया है सब रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।